अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा डॉक्टर रजनीश गुरु जी, आप सभी गणमान्य अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, समय काल व परिस्थितिवश बिना किसी औपचारिक परंपरा के बहुत ही सादगी पूर्वक मैं कार्यक्रम का आरंभ करती हूँ। सर्वप्रथम मैं स्वागत भाषण के लिए आमंत्रित कर रही हूँ संस्थान के निदेशक प्रोफेसर आर.के. धीमन जी को। आज के स्थापना दिवस कार्यक्रम के मुख्य आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, श्री सुरेश खन्ना जी, माननीय मंत्री चिकित्सा वित्त एवं संस्कृति कार्य, श्री संदीप कुमार सिंह जी अभी आने वाले हैं, माननीय राज्य मंत्री चिकित्सा शिक्षा एवं वित्त, डॉक्टर बलराम भार्गव महानिदेशक ICMR नई दिल्ली एवं स्थापना दिवस के वक्ता, श्री राजेंद्र कुमारी तिवारी जी मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन, डॉक्टर रजनीश दुबे जी अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा, डॉक्टर S.K. मिश्रा संकायाध्यक्ष SGPGI, समारोह में उपस्थित समस्त संकाय सदस्य, छात्रगण, अधिकारीगण, कर्मचारीगण तथा उपस्थित भाइयों बहनों एवं पत्रकार बंधुओं, आप सबका इस समारोह में हार्दिक स्वागत है। I welcome you all to the 37th Foundation Day of SGPGI. The institute has come a long way and has made its presence felt in all spheres of the patient care, teaching, training and research both at the national as well as the international levels. In the current time when our state and the whole world is grappling with the COVID-19 pandemic, SGPGI has been at the forefront of providing high quality care of the COVID patients. The institute is striving hard to grow further, and in 2019 and 20 we have added new dimension to the services provided, some of which I would like to present now. SGPGI, as well as all know, is academic medical institute with tertiary care facilities for the patients of the Uttar Pradesh and rest of the country. The institute has been adjudged third best government institution after AIIMS New Delhi and the PGI Chandigarh. Institute has provided Medicare care to an ever increasing number of the patients in the pre-COVID times. Each year in the recent past we have served 7.3 more new OPD registration than the previous years. A new 134-bed ward block was created in 2019 to accommodate more indoor patients. In the 27 operation theaters that we have performed over 13,736 major surgical operations last year, including robotic surgery, minimally invasive surgeries and solid organ transplants. Coming to 2020, the world changed and so did we. COVID, as we all know, has engulfed the entire globe, causing widespread damage to the mankind physically, socially, as well as economically. However, despite being the most populous state in the country, Uttar Pradesh has been able to keep the disease in check, much better compared to other states in the nation. This has been largely possible due to the exemplary handling of the pandemic by the government of the Uttar Pradesh with its scientific approach, far-sighted policies and their strict implementation under the dynamic leadership of Iron Man of the modern India, our dear Mukhyamantri ji, Shri Yogi Adityanath ji. This state-of-the-art Rajdhani COVID hospital, which was created in the shortest possible time, has 318 beds, of which 86% are ICU and HDU beds, fully equipped with the ventilators. The entire workforce of the SGPGI has joined hands and rallied behind me to successfully run the RCH since April. I take this opportunity to sincerely thank all of them, my colleagues. The Department of the Microbiology performed 7,748 RT-PCR
path-breaking initiative of expanding telehealth facilities for the patient care. Through the ECHO, that is Extension for the Community Health and Outcomes platform, our core intensive care and emergency team started interacting COVID teaching and training virtually, connecting 52 state medical colleges. Thus far, over 75 such sessions have been carried out, in which nearly 25,000 healthcare workers of these medical colleges have been trained. Also, EOPD was set up within the SGPCI to minimize travel, exposure of the patient who come far from places for the follow-up. The ECCS services were started on the 1st of May 2020 with faculty from 22 clinical departments of the SGPCI, and a total of 40,000 consultations have been given to date. In short, I can confidently say that our COVID patients have received standard of the care treatment at par with some of the finest facilities in the world. And once again, I would like to say that this all has been possible only because of the unflinching support from the government and untiring effects of the dedicated staff of this institute. On the training front, apart from the courses already running, some new DM, MCH, postdoctoral certificate courses, postdoctoral fellowships, NC programs have been started. On research front, apart from the ongoing research projects, some new extramural grants have been awarded to the faculty. A total of 20 crores extramural grants have been received this year only. An increase in amount of the intramural grants up to 25 or 30 crores have been suggested to give a boost to the research at this institute in the coming financial year and the vision for the next 5 years. The upcoming emergency department building along with the renal transplant complex is being designed to provide emergency services and the state-of-the-art care to the patient with the kidney diseases, including boost to the kidney transplantation at the moment up to the 300 per year. It will also operate in hub-and-spoke model with the aim of upgrading the emergency care in other medical colleges in the state of the UP. The emergency medical services will include air ambulance services for quick transfer of the trauma and critical ill patients from the field to the emergency of the SGPCR. This will prove to be life-saving in this touch-and-go situations. SGPCI is now committed towards the national and the state organ and tissue transplant organization programs. With the expansion of the emergency and the trauma care services, we hope to increase cadaveric donations and therefore uplift the transplant program.
International Science Congress, the National Academy of Science Platinum Jubilee Award, the Tata Innovation Fellowship, the Ranbaksh Award, O.P. Bhasin Award, Bajpayee Award, and most recently the UNESCO Equatorial Guinea Freeze Life Sciences. Dr. Lee John Cook Memorial Prize for Public Health 2009 by WHO Headquarters Geneva is also a recipient of the Padma Shri Award. With that, I present you our today's orator, Dr. Balaram Bhalwani. Thank you, Dr. Mishra, for your very kind words. Honorable Sri Yogi Adityanath Ji, Chief Minister of the largest and the most populous state of India, the Director of the SDPGI, senior bureaucrats, senior ministers, ladies and gentlemen. I will be talking a little bit about the COVID pandemic and India's fight at the COVID pandemic and how India has done better than many countries and why we have done better than many countries and what has been the role of ICMR right from before the lockdown, during the lockdown, after the lockdown, and I will try to cover this all in 12 to 14 minutes. I'll start sharing my screen. So why COVID-19 pandemic in 2020? This century has witnessed several infections like SARS, MERS, Zika, Nipah. It is only because of the change in environment and ecology, rapid urbanization, extreme connectivity, people have been traveling to and fro, neglected public health spending, inadequate spending on health, and that is probably the most important lesson that we have learned through this pandemic, that public health spending has to be increased. And this has been brought out at the parliamentary committees, at the 15th Finance Commission, and also a group of ministers, that the GDP on health spending as well as health research spending has to be increased to 2.5% of the GDP from 1%. This may happen maybe before, maybe by the 75th year of independence, but the initial target was up to 2025. So that will make a tremendous difference in our healthcare. Why we have done well in this pandemic? Because India is the largest democracy with respect to people's voices to recalibrate these interventions. It has been serious right from the beginning. From January 8th, we've constituted the Joint Monitoring Group, and since then we haven't stopped even a single day. The Prime Minister created empowered groups, left empowered groups. The Cabinet Secretary took meetings every second day with all the secretaries, and it was a whole of government approach, calibrated, proactive, preempted, and a very graded response, which was science-driven with best practices and evidence-based. Most importantly, at the national level, we had a very strong leadership with excellent communication with all the states. There were meetings with chief ministers every 2 to 3 weeks. We continued with the 5T strategy of test, track, trace, technology, and treat, and we resisted the concept of herd immunity. We never believed in herd immunity, and we never faced the consequences of herd immunity, which countries like Sweden, United Kingdom, many parts of USA also faced when they started talking of herd immunity. So we have resisted that concept right from January, February till today. Now I will talk a little bit about testing, then a little bit about vaccine and some more. In terms of testing, in February we had more than 6,000 Shia Kargil pilgrims stranded in Iran. 6-member team of ICMR was sent to set up a lab in Tehran. They tested 2,000 people, 15% positive from 5 cities in Iran. Special flights were arranged by Indian Air Force to repatriate these people from Iran, take them to Indian Air Force Base, and then to Kargil, and also get people from Wuhan and Italy. These were all special flights of Indian Air Force that were working from February, March onwards. This is the NIV lab that was established in the embassy of the Tehran. Our concept was to establish a laboratory in every
was RT-PCR lab. The second phase at the district level, we set up the molecular lab, which I will talk a little bit about, the TrueNat. And phase 3 was the rapid antigen test, which was the first time used in India in the month of June, and WHO pre-qualification happened in September, October. So we started using the rapid antigen test much earlier. We repurposed the TrueNat. The TrueNat is a platform for tuberculosis diagnosis. Because we have this platform which was made in India, pre-qualified by the WHO, tested by ICMR in various multi-country trials published in Lancet, which clearly showed that this platform works for tuberculosis. We repurposed it in 2018-19 for Nipah, first time in the world. We also repurposed it for leptospirosis, first time in the world, and now we have used it for COVID-19 diagnosis. This is a point-of-care molecular test. We have 25302 labs in the country with 1,008 sites in 530 districts. This lab we started in March, April, and we have tested more than 5% of the tests by this TrueNat platform. This similar molecular diagnostic test was established in the United Kingdom in the month of October called DNA Nudge, and they have just set up a few laboratories with this lab. But we were far ahead. We had this laboratory in the suitcase, and this was WHO approved, and we've been using this. We set up high throughput laboratories in various parts of the country, north, south, east, west, central, and we set up an assembly line of 12 RT-PCR machines at the NICPR, Noida, with a capacity of 15,000 tests per day. More recently, we set up the mobile testing laboratory in collaboration with Pfizer and ICMR, which is inaugurated by Honorable Home Minister, and which has a testing capacity of 2,000 tests per day, and now 5 are there in Delhi, in Chhatarpur, Rajouri, Rohini, Dwarka, Azadpur, already functional. We started in the March and April. There was shortage of kits. It was a seller's market. China was selling them for very, very high price, and they're saying, if you don't want to buy, I'll give it to some other country. Gradually, all our science ministries, all our startups started setting up these VTMs, RNA extraction kits, and rapid antibody kits. And at the time in March, the price was 1,150 rupees for RT-PCR kit, 320 rupees for VTM, and 320 for RNA extraction. Today, it is 138 rupees, 91 rupees, and 94 rupees. The total test is around 320 rupees. This has gradually come down in the competition by more than 1,000 products have been validated, and these have been validated by all our ICMR centers. Most important for this Mission Lifeline plan, during the lockdown, from 24th March to 31st May, 4 phases of the lockdown, the ICMR did not sleep. There was 24/7 Ministry of Civil Aviation, Indian Air Force, Government of India implemented a special mission for 24/7 carrying of consumables, testing commodities, medical supply to various parts of the countries. Special flights were commissioned even at 2 o'clock in the night for testing commodities in various parts of the country. We have been number 2 in the world in number of testing, and today we have tested more than 15 crore tests. We have had a very calibrated testing strategy. Initially, we were just testing travelers in February, and then in March, April, TrueNat, then we started testing travelers, healthcare, SARI, iLifer, and pool testing. And in June, we had the antigen testing, then we started doing pre-surgery, hospitalized patients, immunocompromised, and in September, it was testing on demand, and we could get testing done anywhere. We had 20 ICMR depots for seamless distribution, designated 30 QCQR labs all across the country, which were able to dispatch and suggest dispatch quantities. We had a data entry portal, which was looking at disease trends, policy making, resource planning, clinical decision making. All the data of all these 15,000 samples is available with us, and we are looking at various data from that. We have done the capacity assessment, matching procurements, including tendering, ordering, projections. All has been done, and more recently, we have had in March, April, we also created the National Task Force, which was informed to the Supreme Court, which was responsible for calibration of testing strategy, advising the government on lockdown containment strategies, develop advisories for discharge policies, oversight on ongoing research, recommend clinical trials, develop clinical management protocols, and we have published 3 issues of the Indian Journal of Medical Research, and the 4th issue is also ongoing, dedicated purely to COVID-19. Hyperimmunoglobulin, like the ATS, we developed this by giving the virus to biological events, and this has been able to develop the hyperimmune serum, which we are now going to test in humans. Human monoclonal antibodies were developed by blood samples which were collected by our ICGB, ICMR, and
no mutation occurring, different cases have less than 1% divergence in the genetic term. So none of the mutations have culminated to change in the pathogenicity, transmissibility, or the virulence of this virus. We developed the first indigenous ELISA kit, and that was used for the National Sero Survey. The first Sero Survey was done during the lockdown in April, May. The second was done in August, September, and the third has just started this week and should be completed by the end of this month. It showed 0.7% prevalence and then 7% prevalence, and they have all been published. We did the sewage serosurveillance like the polio viruses in Mumbai and demonstrated in the sewage in the month of March, April. We demonstrated this virus was present. In terms of vaccine research and development, the effort started very early in the response to the pandemic. We were the 5th country in the world to isolate the virus, and this virus led to the development of the indigenous vaccine, indigenous ELISA kits, hyperimmunes, horse serum, monoclonals, polyclonals, and also for screening of antivirals. India is the world's major vaccine hub with 19 companies and 24 manufacturing facilities supplying more than 60% of the vaccines to the developing world, and India accounts for 1/4 of the global manufacturing facilities. We have India-invented vaccine, which is the Bharat Biotech, which Indian Council of Medical Research gave the inactivated virus and did most of the studies for them. The Zydus Cadila, which is a DNA vaccine, ICMR and DBT partner. And the foreign vaccine, which is the Serum Institute, where we did the clinical trial for them, and also the Reddy's Laboratories Biological and Institute. We know that the vaccine development requires preclinical study, preclinical, small animals, large animals, phase 1, phase 2, and before phase 2 or phase 3, we can give emergency use authorization, and many of these companies have now applied for this. For this private-public partnership of ICMR and Bharat Biotech, we have done the animal studies, the mouse, the rabbits, the rats, the monkeys, the hamster studies, and they have been published in Cell and Nature Communication, and the phase 1 is published in Lancet Infectious Diseases, phase 2 is in Lancet Infectious Diseases under review, and the protocol of phase 3 is in the BMJ. This was the safety study of mice, rabbits, right up to day 28, hamster study right up to day 65, and the most interesting part was the non-human primate study, where we had to do this study on monkeys. We had to capture the monkeys after getting necessary permissions during the lockdown in April, May. We tested those monkeys for any disease, tuberculosis, purchased X-ray machines. Then we challenged those monkeys, we gave them the vaccine, then we challenged those monkeys by bronchoscopy, giving them the virus by bronchoscopy, by trained specialists who are flown from Delhi to Pune to do this work in the BSL-4 laboratory of Pune, and then the bronchoalveolar lavage was collected every day by bronchoscopy, and this has been accepted in Nature Communications as one of the largest studies on non-human primates and monkeys, and demonstrated that this vaccine is working. The clinical trials, phase 1, phase 2 have been completed. 104 days of phase 1 is available with no serious adverse effects. On 375 participants, phase 2, 380 participants, no serious adverse effect. And phase 3, 8,000 patients have been recruited, and we have to do 26,000 patients. We also tested the BCG trial in elderly, and showed a good immune response in elderly above the age of 60 to 80 years. We have the world's largest immunization program with 27 newborn vaccinated every year, 30 million pregnancies every year, 100 million vaccinated with 27,000 vaccine storage facilities, 62% immunization coverage, 650 million doses per year. So we are well prepared for the immunization program with a CoVIN digital platform for vaccine delivery, and we should be able to get, as soon as we get emergency use authorization, start the vaccination of up to 30 crore of our population by June, July. We have had partnerships with DBT, DST for antiviral screening and for validation of textiles, products, mobile applications, Ayush, testing laboratories, biorepositories, indigenous diagnostics, and we've had the Cabinet Secretary and the empowered groups of the National Task Force work with the state governments, Drug Controller General, National Accreditation Board, Emergency Medical Receipt Fund, NCDC, and the National Information Center, and we have been able to tackle this pandemic, and up till now, we hope the positive percentage is less than 3%, 3 to 4% in the country, and hopefully with the efforts of social distancing, usage of masks and hand washing, and the use of these newer techniques and vaccines, we should be able to win this pandemic. Thank you so much for your attention. Thank you so much. प्रोफेसर भार्गव जी को
संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ के 37वें स्थापना दिवस समारोह में आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित उत्तर प्रदेश के शिखर पुरुष जनप्रिय नेता आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर विराजमान हमारे साथी मंत्री श्री संदीप कुमार सिंह जी, राज्य मंत्री चिकित्सा शिक्षा एवं वित्त डॉक्टर बलराम भार्गव जी, महानिदेशक ICMR नई दिल्ली, जो हमारे साथ वर्चुअली जुड़े हैं, श्री राजेंद्र कुमार तिवारी जी, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन, डॉक्टर रजनीश दुबे, अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा, डॉक्टर RK धीमन, निदेशक SGPGI, डॉक्टर SP मिश्रा, संकाय अध्यक्ष SGPGI, समस्त फैकल्टी मेंबर्स, छात्रगण, अधिकारीगण, कर्मचारीगण एवं उपस्थित सभी सम्मानित बहनों और भाइयों, मुझे अत्यंत हर्ष है कि आज संस्थान के 37वें स्थापना दिवस समारोह में आप सभी के साथ मुझे भी इसमें पार्टिसिपेट करने का अवसर मिल रहा है। मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इस संस्थान के प्रति जो सकारात्मक दृष्टिकोण बराबर रखने के लिए और समय समय पर मार्गदर्शन करने के लिए मैं उनको हृदय से बधाई देता हूँ कि जिस प्रकार से उन्होंने हर स्तर पर इस संस्थान के बहादुरी और विकास के लिए अपने निर्देश भी दिए और हमारा मार्गदर्शन भी किया। बहनों और भाइयों, आज 37वां स्थापना दिवस है इस संस्थान का और इस जो कालखंड बीता है उसमें SGPGI ने जो ख्याति अर्जित की वो अपने आप में एक अत्यंत सराहनीय, अत्यंत प्रशंसनीय कार्य है और इसके पीछे कितने लोगों की साधना, कितने लोगों का समर्पण और कितने लोगों के द्वारा आत्मीयता से उन मरीजों के साथ पेश आना है, जिसकी वजह से संस्थान की ये ख्याति बनी। अधिकृत रूप से तो एम्स नई दिल्ली और चंडीगढ़ के बाद हमारा नाम दिया जाता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि इस संस्थान ने कई ऊंचाइयों को छुआ है और यहाँ के जितने भी डायरेक्टर से लेकर जितने फैकल्टी मेंबर्स हैं, जितने भी यहाँ पर डॉक्टर्स हैं, उन सभी के
मंत्री जी को उनके संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही गर्व का विषय है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के 6 मेडिकल कॉलेजों में वर्चुअल आईसीयू स्थापना करने की पहल की है। इसके लिए हमारे संस्थान SGPGI एवं पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड के बीच एक द्विपक्षीय समझौता भी किया गया है। इस अवसर पर संस्थान के निदेशक एवं पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के डायरेक्टर पर्सनल श्री VK सिंह जी से इस MOU का आदान प्रदान करेंगे। श्री VK सिंह जी से अनुरोध है कृपया मंच पर आने का दर्शन करें। श्री VK सिंह जी माननीय मुख्यमंत्री को सम्मान स्वरूप एक विशाला भेंट करेंगे। कुछ होना चाहिए इधर भी तो आ रही है। विगत कई वर्षों से संस्थान की ये परंपरा रही है कि उत्कृष्ट कार्य करने वाले सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक एवं कर्मचारी को पुरस्कृत किया जाए। इसी क्रम में इस वर्ष से बेस्ट रिसर्च पेपर अवार्ड का भी शुभारंभ किया गया है। परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि वे अपने करकमलों से इन सुपात्रों को पुरस्कार प्रदान करने की प्रभाव करें। बेस्ट रिसर्च पेपर अवार्ड मुख्यतः 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली डिसिप्लिन मेडिकल, इसमें पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजी से प्रोफेसर अंशु श्रीवास्तव, न्यूरोलॉजी विभाग से एडिशनल प्रोफेसर कीर्ति नारायण जी, न्यूरोलॉजी विभाग से एडिशनल प्रोफेसर कीर्ति नारायण जी, रेडियोथेरेपी विभाग से एसोसिएट प्रोफेसर शगुन मिश्रा जी, पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजी असिस्टेंट प्रोफेसर मोहित सिंह शर्मा, सर्जिकल डिसिप्लिन से एंडोक्राइन सर्जरी प्रोफेसर गौरव अग्रवाल जी, न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट एडिशनल प्रोफेसर अनंत मेहरोत्रा, सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सुप्रिया शर्मा, थर्ड डिसिप्लिन बेसिक साइंस एंड लैब डिसिप्लिन, इसमें प्रोफेसर डॉक्टर सोनिया नित्यानंद, हेमेटोलॉजी एंड स्टेम सेल रिसर्च सेंटर, प्रोफेसर सोनिया नित्यानंद जी, हेमेटोलॉजी एंड स्टेम सेल रिसर्च सेंटर, हेमेटोलॉजी विभाग से एडिशनल प्रोफेसर ललित रंगवांसा, एसोसिएट प्रोफेसर मॉलिक्यूलर मेडिसिन बायोटेक्नोलॉजी आलोक कुमार जी, एंडोक्राइनोलॉजी से असिस्टेंट प्रोफेसर मॉलिक्यूलर मेडिसिन एंड बायोटेक्नोलॉजी एसोसिएट प्रोफेसर आलोक कुमार जी, असिस्टेंट प्रोफेसर एंडोक्राइनोलॉजी रोहित एंथनी सिन्हा। इसी क्रम में हमारे बेस्ट DM सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर आकाश माथुर गैस्ट्रोएंटरोलॉजी से, बेस्ट MCS सीनियर रेजिडेंट एंडोसर्जरी डॉक्टर विक्रम S, बेस्ट MP जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर श्रुति पांडे एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट से, बेस्ट नर्सिंग स्टाफ
Miss Saroj Lata Gautam, Sister Grade 1, Endocrine Surgery. Best Nursing Staff, Sister Grade 2, Mr. Nikhil C.D. अपरिहार्य कारणों से मिस्टर सीडी उपलब्ध नहीं है, आ नहीं पाए हैं, इसलिए इनका अवार्ड जॉनी जॉर्ज साहब रिसीव करेंगे। बेस्ट टेक्नीशियन ग्रेड 1 माइक्रोबायोलॉजी विभाग से मिस्टर बी के मिश्रा जी। जोरदार तालियों से सभी का स्वागत करें, स्वागत करें। एक बार पुनः मैं अनुरोध करूंगी समारोह के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी से कि कृपया आप अपने आशीर्वाद वचनों से हमें अनुग्रहित करने की कृपा करें। SCPCI के 37वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित आज के समारोह में उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी, प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा वित्त एवं संसदीय कार्य के मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी, विभाग के राज्य मंत्री श्री संदीप सिंह जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री राजेंद्र कुमार तिवारी जी, अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा श्री रजनीश दुबे जी, अपर मुख्य सचिव वित्त और अपर मुख्य सचिव गृह श्री अवनीश अवस्थी जी, संस्थान के निदेशक के धीमान जी, संकायाध्यक्ष डॉक्टर S.K. मिश्रा जी, और अभी वर्चुअली जिन्होंने कोविड-19 पर अपना एक प्रेजेंटेशन हम सब के सामने प्रस्तुत किया है, DG ICMR प्रोफेसर बलराम भार्गव जी, SCPCI के सभी यहाँ पर उपस्थित सीनियर फैकल्टीज और उपस्थित इस संस्थान से जुड़े हुए सभी यहाँ के चिकित्सकगण, मैं सबसे पहले आप सबको इस संस्थान के 37 वर्ष इस यात्रा के लिए हृदय से बधाई देता हूँ और इस संस्थान के प्रति अपनी शुभकामनाएं भी व्यक्त करता हूँ। मुझे प्रसन्नता है कि आज SCPCI और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड ने एक MOU पर साइन किया है, जिसमें टेलीमेडिसिन ICU के लिए ₹7 करोड़ की सुविधा पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन CSR फंड से SCPCI को यहाँ प्रदान कर रहा है। मैं इसके लिए पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन को हृदय से धन्यवाद देते हुए SCPCI जैसे प्रतिष्ठित संस्थान को इस सुविधा प्राप्त हो रही है, इसके लिए संस्थान को हृदय से बधाई भी देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूँ। वास्तव में टेलीमेडिसिन आज की आवश्यकता है और हम लोगों ने कोविड-19 के खिलाफ चल रही देश की इस लड़ाई को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने में टेलीमेडिसिन की उपयोगिता को बहुत नजदीक से महसूस किया है। लॉकडाउन के बाद जब कोविड-19 के केसेस बढ़े तो स्वाभाविक रूप से प्रदेश के अंदर इतनी बड़ी आबादी का प्रदेश और 24 करोड़ लोगों को कोविड-19 के
के संक्रमण से भी बचाना है और जो लोग कोविड-19 की चपेट में आ गए हों उन्हें बेहतर उपचार देकर के सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने की व्यवस्था भी करनी है। इसके लिए हर एक जनपद में डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल बनाए गए। जहां पे हमारे पास मेडिकल कॉलेज थे वहां पर मेडिकल कॉलेजेस में, जहां मेडिकल कॉलेजेस नहीं थे वहां पर हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को या फिर कोई एक स्टेट गवर्नमेंट की खाली बिल्डिंग थी जिसको हम लोग 300 बेडेड का कोविड हॉस्पिटल बना सकते थे, तो हम लोगों ने वहां पर उसे कोविड हॉस्पिटल के रूप में विकसित किया। और उस समय मैं इस बात को महसूस किया, प्रारंभिक 2 महीनों के अंदर मेरे मन में इस बात को आया कि अगर हम लोग, जब भी मैं हॉस्पिटल्स में फोन से बातचीत करके पूछता था क्या स्थिति है, क्योंकि हमने प्री टायर व्यवस्था की थी, हर जिले के लिए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी बनाए थे, मुख्यमंत्री कार्यालय भी और चिकित्सा शिक्षा मंत्री का कार्यालय भी उन लोगों के साथ संवाद बनाएगा, प्रत्येक मरीज के साथ, प्रत्येक विशेषज्ञ के साथ, पैरामेडिक्स के साथ। वहां से जो बातें छन करके हमारे सामने आती थी उसमें महसूस होता था कि वास्तव में बहुत सारी जगह हमारे पास विशेषज्ञ चिकित्सक नहीं थे। तो हम लोगों ने प्रदेश के अंदर 3 संस्थानों को, SGPGI को, KGMU को और RML को इस बात की जिम्मेदारी थी कि वर्चुअल ICU ये लोग प्रारंभ करें। और मुझे लगता है कि SGPGI ने जो वर्चुअल ICU यहाँ से प्रारंभ किया बहुत सफल रहा है, क्योंकि वह प्रदेश के अधिकतर मेडिकल कॉलेजेस को हम लोगों ने इसके माध्यम से जोड़ा है और आज प्रदेश के 6 संस्थान को टेलीमेडिसिन के साथ जोड़ने के लिए मेडिसिन की इस ICU की सुविधा के साथ जोड़ने के लिए पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन यहाँ पर CSR से मदद किया है। मैं इसके लिए पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन को हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूँ। वास्तव में किसी भी संस्थान के लिए 37 वर्ष का समय अपने को साबित करने का एक समय हो, पर एक लक्ष्य कालावधि होती है। इस अवधि में हम पता लगा सकते हैं कि संस्थान की दिशा क्या है, संस्थान कहाँ जा रहा है और संस्थान के सामने आगे का भविष्य कैसा है। और अगर कहा जाए तो 37 वर्ष SGPGI के इतिहास में बहुत गौरवशाली रहे हैं और एक नए विश्वास के साथ में प्रदेश ही नहीं बल्कि आसपास के राज्य भी SGPGI को देखते हैं। जहां SGPGI से जुड़े हुए यहाँ के फैकल्टी मेंबर्स को, यहाँ के जो मेडिकल से जुड़े हुए जो भी स्टूडेंट्स हैं, सब के लिए जहाँ एक बहुत गौरव की बात है, लेकिन वहीं हम सब के सामने जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों से हम कैसे निकल सकते हैं, यह भी हमारे लिए वास्तव में उसकी तैयारी के लिए हम सबको अपने आप को हमेशा अपडेट करना पड़ेगा। याद करना, जहां संभावना होती है लोगों की अपेक्षाएं भी वहां होती है और जहां पर लोगों को लगता है कि ये कुछ नहीं कर सकते वहां लोग अपेक्षा भी नहीं करते। और हमेशा जिससे अपेक्षा होती है और अगर हम उन अपेक्षाओं पर खरा उतरते हैं तो वही हमारे जीवन को यशस्वी बनाता है, वही हमारे जीवन को अन्य लोगों के लिए यादगार बनाता है और फिर वह यात्रा आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणादायी बनती है। और यह चैलेंज आज SGPGI के पास है, क्योंकि प्रदेश के अंदर अब एम्स जैसे संस्थान आ चुके हैं। मैं हमेशा इस बात का बहुत विरोधी रहा जब SGPGI की तरफ से आता था कि हमें एम्स के समकक्ष मान्यता मिलनी चाहिए। मैं कहता था इसको स्वयं भी इसके पास क्षमता है कि एम्स से आगे जा सकता है, लेकिन हम लोग जो एक मानसिकता हो जाती है कि नहीं हम भी उसके पीछे चलेंगे। यानी मेडिकल का फील्ड एक ऐसा फील्ड है जहां पर हम लोग टीचिंग, ट्रेनिंग और रिसर्च के माध्यम से अपने आप को साबित कर सकते हैं और SGPGI की स्थापना के पीछे का उद्देश्य ही यही था। SGPGI ने इस दौरान अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल भी की, लेकिन
कहीं ना कहीं जो ये मानसिकता थी कि हमें भी समकक्षता चाहिए और समकक्षता के नाते हम कुछ लोगों होते हुए दिखाई दिए, मुझे लगता है उससे उभरना पड़ेगा और एक नई स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए एसजीपीजीआई को खड़ा होना पड़ेगा। याद करिए, वर्ष 2020 तक आपके पास प्रदेश में सबसे प्रतिष्ठित संस्थान के रूप में एसजीपीजीआई है, लेकिन 2021 में उत्तर प्रदेश में 2 नए एम्स फुल फ्लेश चालू होने वाले हैं, एम्स गोरखपुर और एम्स रायबरेली। इसके साथ ही एम्स के समकक्ष संस्थान बीएचयू वाराणसी भी प्रारंभ हो रहा है और प्रदेश के अंदर अन्य संस्थान को भी विकसित करने की बड़ी कार्य योजना हम लोगों ने आगे बढ़ाई है। हम लोग जानते हैं यहां पर कार्य का लोड बहुत ज्यादा है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जहां पे इतनी संभावनाएं, उन्हीं के बीच में हमें अपनी संभावनाओं को भी आगे बढ़ाना है। वहां पे आपके लिए ट्रीटमेंट, यानी पूरा का पूरा आपका सिस्टम ही ट्रीटमेंट पर आ जाए। अरे टीचिंग के माध्यम से रिसर्च को आगे बढ़ाना, इन संभावनाओं के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म एसजीपीजीआई के लिए उत्तर प्रदेश उपलब्ध है। उस प्लेटफॉर्म का बेहतर उपयोग हम कैसे कर सकते हैं, इस दिशा में प्रयास करना और उसके लिए कार्य करना। मैं इस बात को मानता हूं कि एक सामान्य मरीज एसजीपीजीआई में नहीं आता है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से या मेडिकल कॉलेज से रिफर होने के बाद ही कोई पेशेंट यहां पर आता है। और हम लोगों ने प्रदेश के अंदर अब मेडिकल कॉलेजेस का एक बहुत अच्छा तंत्र विकसित किया है। 1947 से लेकर के 2016-17 तक प्रदेश के अंदर केवल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बन पाए थे और 2017 से 2020 के बीच में हम लोग वर्तमान में 30 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस नए बना रहे हैं। आप अनुमान कर सकते हैं कितनी तेजी के साथ प्रदेश के अंदर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रदेश की सरकार कार्य कर रही है। और ये 30 मेडिकल कॉलेजेस के साथ साथ हर एक जिले में हम लोग एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेज उपलब्ध करा चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का, सीएचसी का, पीएचसी की स्ट्रेंथनिंग की कार्रवाई युद्ध स्तर पर प्रदेश के अंदर चल रही है। और जिन्हें सब नहीं लगता, जिन्हें लगता है कि आज से 5 साल पहले का उत्तर प्रदेश है, उन्हें लगता है कि उत्तर प्रदेश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर है। और जिन्होंने नजदीक से इसे देखा है, वे लोग इस बात के लिए आश्वस्त थे कि कोरोना के खिलाफ हम लड़ाई बहुत मजबूती से जीतेंगे। और जिन्हें मालूम नहीं था वे सशंकित थे और हम भी कहते थे हम कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को पूरी मजबूती के साथ जीतेंगे, उत्तर प्रदेश में बात नहीं होने देंगे। और हमें प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश ने 3-3.5 वर्षों में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो ध्यान दिया, आज उसका परिणाम कोविड-19 के मैनेजमेंट में हम सबको देखने को मिला। और आज उसका परिणाम ही है कि जब WHO जैसी संस्थाएं भी उत्तर प्रदेश के कोविड मैनेजमेंट को उसकी सराहना करने से अपने को रोक नहीं पाती है, ये उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है। लेकिन इसमें एक एक संस्थान ने योगदान दिया, हर एक स्तर पर, हर एक टीम ने। यहां पे हमारे जितने भी डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल थे, उनमें जो भी उनके साथ जो भी चिकित्सक जुड़े थे या मेडिकल संस्थान से जुड़े थे, जो फैकल्टी मेंबर्स जुड़े हुए थे, वे सभी तो उसमें योगदान दे ही रहे थे। लेकिन साथ साथ हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर, जिले स्तर पर भी हम लोगों ने कोविड हॉस्पिटल बनाए थे। वहां से भी विशेषज्ञ चिकित्सकों ने अपने स्तर पर वहां पर योगदान दिया। बहुत सारी जगह हम लोगों ने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को भी कोविड हॉस्पिटल के रूप में विकसित किया था, क्योंकि हम लोगों ने उसके लिए पहले शर्त ये रखी थी कि कोविड हॉस्पिटल और नॉन कोविड अलग अलग होंगे और कोविड और नॉन कोविड को हम एक साथ नहीं रहने देंगे, एक संस्थान में, एक बिल्डिंग पे नहीं रहने देंगे। और उसका परिणाम बहुत अच्छा हमारे सामने आया और हम लोगों को उसमें बहुत सफलता प्राप्त हुई। लेकिन अभी जो प्रोफेसर प्रणव भार्गव कह भी रहे थे कि वैक्सीन आ रही है, लेकिन तब तक हमें कुछ सावधानी तो बरतनी पड़ेगी। लेकिन उस सावधानी में हम पलायन कर जाएं, ये हम सबके लिए चिंताजनक स्थिति है। और मैंने कोविड-19 के दौरान देखा बहुत सारे लोग तो पलायन का रास्ता अपना लिए। हम लोगों को कोविड हॉस्पिटल में सीसीटीवी कैमरे लगाने पड़े कि
कि लोग वहां जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं देखने के लिए, थोड़ा चेक करो। पैरामेडिक्स वहां जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, विशेषज्ञ चिकित्सक जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, सीनियर फैकल्टी वहां जा रही है कि नहीं जा रही है। ये नौबत नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन ये नौबत भी आई तो उसका विकल्प भी निकला। और मैं चाहूंगा कि एक अच्छा अवसर था हमारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के लिए, जब हेल्थ केयर के लिए हम जन विश्वास को एक बार फिर से अर्जित कर सकते थे। और जिन संस्थाओं ने अच्छा काम किया उन्होंने जन प्रतिष्ठा को, जन विश्वास को जीता है। लेकिन जहां पर कमजोर कार्य हुआ, लापरवाही हुई, वहां पे जनता ने उसी प्रकार की नेगेटिविटी उन संस्थानों के प्रति और उन लोगों के प्रति व्यक्त भी की है। क्योंकि एक एक व्यक्ति, कोविड जैसी बीमारी तो ऐसी है कि जहां पे हर व्यक्ति के पास आज के दिन तो स्मार्टफोन है, वो एक एक प्रतिक्रिया वहां से हम लोगों के पास देखता था। और हम लोगों ने एक एक पेशेंट के साथ 3-3, 4-4 बार प्रतिदिन संवाद हम कराते थे। और उसका परिणाम क्या होता था कि लोग एक एक जानकारी हम लोगों के पास आती थी। कैसे उन्हें भोजन मिल रहा है, उनके वार्ड में सफाई है कि नहीं है, उनके वार्ड में बेडशीट बदली जा रही है कि नहीं जा रही है, वहां पैरामेडिक्स उपस्थित रहता है कि नहीं रहता है, वहां पे डॉक्टर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। आप अगर डॉक्टर नहीं आए हैं, पैरामेडिक्स नहीं आए, तो आप हमें ही नोट करा दीजिए कि आपका ऑक्सीजन लेवल क्या है, आपका टेम्परेचर क्या है, आप ही बता दीजिए। हम दोनों से बात करते थे, होम आइसोलेशन में रहने वाले पेशेंट से भी और जो हॉस्पिटल में है उससे भी हम लोगों का निरंतर इस प्रकार का संवाद होता था। और उसका परिणाम था कि जहां पर थोड़ी भी लापरवाही होती थी तो वहां पर शासन फिर से वहां पर पहल करके उसको दूर करने का प्रयास करता था। और उसका परिणाम हम सबके सामने अच्छे ढंग से आया। और खासतौर पर मैं धन्यवाद दूंगा ICPGI को, जिन्होंने वर्चुअल आईसीयू को बहुत बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ा करके प्रदेश के मेडिकल कॉलेजेस को एक विशेषज्ञ जो टेलीमेडिसिन की फैसिलिटी थी, आईसीयू की फैसिलिटी थी, उससे लाभान्वित किया। इसका काफी बड़ा लाभ प्रदेश के बहुत जो कोमॉर्बिड पेशेंट थे उनको इसका बहुत लाभ हुआ। लेकिन अभी एक लंबी यात्रा आगे लेकर चलनी है। और याद करना कि अगर हम समय के अनुरूप नहीं चले, समय के धारा के अनुरूप अगर हम लोगों ने आज के परिप्रेक्ष्य में अपने को नहीं ढाला तो हम पिछड़ जाएंगे, प्रतिस्पर्धा से बाहर हो जाएंगे। एम्स जैसे संस्थान से आपका प्रतिस्पर्धा अब होने वाली है। तकनीक से आप सबको अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। और इस दृष्टि से जो आपके सामने आने वाले समय की चैलेंजेस होंगे, उस दृष्टि से आप अपनी तैयारी करें। और मैं सबसे पहले तो ICPGI से कहूंगा कि आप अपनी जनरल OPD प्रारंभ कर दीजिए। अब कोरोना से बहुत भयभीत मत होइए, सावधानी और सतर्कता बरतिए। अगर डॉक्टर ही OPD छोड़ करके गायब हो जाएगा तब तो फिर हमने इस मामले में रिसर्च कर लिया, तब तो हम लोग फिर इसके आगे के उपचार के लिए, और जो एक कॉमन मैन के अंदर भय है, प्राइवेट हॉस्पिटल अधिकतर अपनी जनरल OPD प्रारंभ कर चुके हैं, अधिकतर क्षेत्रों में जनरल OPD चल रही है। SCPGI क्यों नहीं कर पा रहा है, KGMU क्यों नहीं कर पा रहा है, RML क्यों नहीं कर पा रहा है? अगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कर सकते हैं, ये हमें तत्काल अपनी प्रारंभ करनी पड़ेगी। दूसरा, शासन की उन योजनाओं को भी अपने साथ जोड़ना पड़ेगा और पूरी मजबूती के साथ जोड़ना पड़ेगा। जैसे आयुष्मान भारत की योजना है, आयुष्मान भारत में भारत सरकार और प्रदेश सरकार मिलकर के हर गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले पेशेंट को 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य बीमा का कवर दे रही है। आयुष्मान भारत की ये सुविधा उन गरीबों को हर एक को मिले। हमें ये देखना चाहिए कि SCPGI जैसा संस्थान हर एक पेशेंट के लिए बिना भेदभाव के स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सदैव तत्पर है। यहाँ पे सिफारिश ही नहीं बल्कि कोई भी पेशेंट आएगा उसको हम बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराएंगे। और आयुष्मान भारत की सफलता एक गरीब पेशेंट को मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधा पर निर्भर करेगी और इससे आपको तैयारी करनी पड़ेगी। यद्यपि आयुष्मान भारत में यहाँ पे लगभग 750-800 के आसपास पेशेंट को ट्रीटमेंट की सुविधा दी गई, लेकिन ये बढ़नी चाहिए और
अच्छे ढंग से इसको आगे बढ़ाने की कार्रवाई करनी चाहिए। एससीपीजीआई का ट्रॉमा सेंटर बहुत दिनों तक बहुत त्रिशंकु की तरह लटका हुआ था। केजीएम चलाएगा, एससीपीजीआई चलाएगा, कोई और चलाएगा, कोई और चलाएगा। अंत मैंने कहा नहीं, एससीपीजीआई उसको चलाएगा। एससीपीजीआई के नजदीक एससीपीजीआई को चलाना चाहिए। और एससीपीजीआई ने वहां पे कोविड हॉस्पिटल बनाया। आपने देखा होगा कोविड हॉस्पिटल से जो कोई भी कोविड हॉस्पिटल में आपके यहां आया वो संतुष्ट होकर के गया। उसने प्रारंभिक रूप में कुछ थोड़े बहुत शिकायत आई होंगी, लेकिन बाद में जब वहां पर सभी सीनियर फैकल्टी जानी प्रारंभ हुई, उसके बाद ट्रॉमा सेंटर में जो कोविड हॉस्पिटल बना, उस कोविड हॉस्पिटल में एक नई पहचान दी है। और एससीपीजीआई की जो विशेषज्ञ स्वास्थ्य सुविधाएं थी उससे लोगों के मन में एक विश्वास इस आपदा काल के अंदर भी भरने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। और मैं चाहूंगा कि आफ्टर कोविड हमें ट्रॉमा सेंटर को फिर पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने की तैयारी करनी चाहिए, उसको बहुत अच्छे ढंग से संचालित करना चाहिए, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की आवश्यकता है। और आज के प्रत्यक्ष में हम लोग देखेंगे तो वह वर्तमान की उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने में बहुत सहायक हो सकता है जो जिसके लिए एससीपीजीआई जाना जाता है। यहां पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर के अभी हमें अपने कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ाना पड़ेगा। खासतौर पर जो हेपेटोलॉजी विभाग में क्रियाशील करने की कार्रवाई है, या यहाँ पर ऑर्गन ट्रांसप्लांट की कार्रवाई है, लिवर ट्रांसप्लांट का है, या फिर हार्ट ट्रांसप्लांट की सुविधा को, ये सब कार्य पीजीआई में अब तक प्रारंभ हो जाने चाहिए। पीजीआई जैसा संस्थान ये उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तर भारत का एक प्रतिष्ठित संस्थान माना जाता है। और इसमें अगर हम पीछे रह गए, कोई नए संस्थान आगे आकर के अगर इस कार्य को जो पहला कार्य करेगा वो इसमें लीड कर लेता है। और हमें तकनीक के साथ अपने को अपडेट करना पड़ेगा। ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए, लिवर ट्रांसप्लांट के लिए, या किसी भी हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए इसकी दिशा में हमें तेजी से कदम बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर हम अपनी टीम को इसके लिए तैयार नहीं कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं पीछे हो जाएंगे। और जो आज के दिन पर प्रदेश के अंदर पीजीआई की जो प्रतिष्ठा है, उस प्रतिष्ठा के अनुरूप हम लोगों को इस पर कार्य करना होगा। और आज के इस अवसर पर जब पीजीआई अपने 37वां स्थापना दिवस का कार्यक्रम कर रहा है, तो मैं इस अवसर पर चाहूंगा कि एडवांस डायबिटीज सेंटर की स्थापना की दिशा में भी पीजीआई काम करेगा तो बहुत अच्छा होगा। राज्य सरकार इस दिशा में आप लोगों को हर प्रकार का सहयोग करेगा। और जहां पर कोई भी संस्थान कार्य आगे बढ़ाने के लिए तैयार होता है, वहां पे दिशा ठीक होनी चाहिए, सकारात्मक होनी चाहिए। वहां पर उसके सामने न फंड की प्रॉब्लम हो सकती है और न उसके सामने अन्य किसी भी प्रकार की कोई समस्या उसके सामने नहीं हो सकती है, कहीं भी किसी भी प्रकार की। मैंने इसीलिए जब विभाग का दायित्व दिया तो मैंने वित्त मंत्री को ही ये विभाग भी दिया, जिससे वित्त की कोई समस्या आपके पास न आने पाए। लेकिन छोटी छोटी बातों को लेकर के कार्य बाधित करना ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। बेस्ट प्रैक्टिस ये होगी कि आप एक एक व्यक्ति को संतुष्ट करके यहां से भेजें, और इसी में पीजीआई की प्रतिष्ठा है। यस और अपयस व्यक्ति की कृतियों पर निर्भर करता है। अच्छा करेंगे, यस के भागीदार बनेंगे। गलत करेंगे या चैलेंज से भागेंगे तो अपयस के भागीदार बनेंगे। प्रदेश में मुझे याद है जब 22 मार्च को जनता कर्फ्यू का आयोजन था, तो जनता कर्फ्यू के बाद सायंकाल मेरे पास पहले उपराष्ट्रपति जी का फिर राष्ट्रपति जी का फोन आया। दोनों ने एक ही बार में चिंता व्यक्त की। 22 मार्च को मुझे याद है शाम के समय दोनों का फोन आया। दोनों ने कहा योगी जी कोरोना आ गया है, हम लोग यूपी के बारे में चिंतित हैं, क्या होगा यूपी का। मैंने कहा क्या समस्या है यूपी से। उन्होंने कहा हाँ यूपी कैसे बचेगा, इतना पुअर हेल्थ सिस्टम वहां का, इतनी घनी आबादी, और हमें तो भय है कि लॉकडाउन अगर लगता है, तब तक लॉकडाउन की घोषणा नहीं हुई थी, लेकिन अगर बंदी होती है और लगभग 1 करोड़ के आसपास यूपी के माइग्रेंट लेबर यूपी में आएंगे तो यूपी में आप किसी को बचा नहीं पाएंगे। और आपने देखा होगा अगर हम भी
उन लोगों की तरह भागे होते जिन्होंने सेल्फ क्वारंटीन में अपने को डाला था, तो क्या हम यूपी को बचा पाते? 25 मार्च से लेकर के आज भी सुबह, आज सुबह 11 बजे से हम लोग डॉक्टर शकुंतला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय के कॉन्वोकेशन में मुझे जाना था 11 बजे से, लेकिन 11 बजे के पहले मैंने कोविड-19 की बैठक ली है। यानी कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन मैंने बैठक फिजिकली, और अगर मैं लखनऊ से बाहर हूं तो मैंने वहां से वीसी के माध्यम से या फिर अन्य माध्यमों से इसकी बैठक ली है। एक एक संस्थान के बारे में, एक एक पेशेंट के बारे में, एक एक मौत के बारे में, कहां पे मौत कैसे हुई, क्या कारण है, क्या हम आगे सुविधा दे रहे हैं, इन सब के बारे में निरंतर हम लोग बैठक दे रहे हैं। और ये केवल स्वास्थ्य के बारे में नहीं, शुरुआत में तो आपने देखा होगा स्वास्थ्य हेल्थ की प्रॉब्लम कम, शुरुआत में तो व्यवस्था की थी, डोर स्टेप डिलीवरी कैसे हमें देना है, कैसे एक एक व्यक्ति तक हमें खाद्यान्न पहुंचाना है, कैसे हम लोगों को पूरे प्रदेश के अंदर हम उन सुविधाओं को दे सके। माइग्रेंट लेबर जब आना प्रारंभ हुई तो सुरक्षित उन्हें घर तक कैसे पहुंचाएंगे, कैसे हम उनको सुरक्षित रखेंगे, कैसे हम क्वारंटीन सेंटर की व्यवस्था का संचालन करेंगे, ये सभी चैलेंजेस थे। लेकिन हम लोगों ने प्लान का रास्ता नहीं अपनाया, हमने उस चुनौती को चुनौती के रूप में स्वीकार किया और सफलतापूर्वक उसका मुकाबला करते हुए एक एक चुनौती आती गई और हम सफलतापूर्वक उसका मुकाबला करते हुए सफलता की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करते गए। और आज उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश देश के अंदर कोविड पॉजिटिविटी में भी और सेफार में उत्तर प्रदेश का परिणाम देश की किसी भी अन्य राज्य की तुलना में बेहतर उदाहरण है। और इस दृष्टि से मैं कह सकता हूं कि टीम वर्क है, यह व्यक्ति के लिए भी और व्यवस्था के लिए भी वो उतना ही महत्व रखता है। इस टीम वर्क को लेकर के हम लोग बेहतरीन कार्य कर सकते हैं और मैं चाहूंगा कि एसजीपीजीआई इसके लिए अपने आप को तैयार कर पाएगा तो वास्तव में न केवल संस्थान का जो यशस्वी और गौरवशाली अतीत रहा है वह उसको भविष्य में भी इसी गौरवशाली व्यवस्था के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। और अगर किसी भी एक स्तर पर लापरवाही हुई तो स्वाभाविक रूप से उस यश के साथ हर व्यक्ति भी यश का भागीदार बनता है, संस्थान का एक एक व्यक्ति। और जब किसी संस्थान के साथ अपयश जुड़ता है तो उस अपयश का भागीदार हर एक व्यक्ति ही बनता है, टॉप टू बॉटम हर एक व्यक्ति, कोई भी उससे वंचित नहीं रह सकता है। एक हम पर निर्भर करेगा हम किस रूप में से आगे बढ़ना चाहेंगे। और मैं विश्वास करता हूं कि 37 वर्षों की गौरवशाली परंपरा को आप और भी अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। एसजीपीजीआई के लिए जो वर्तमान के संकल्प हैं, वर्तमान की जो चुनौतियां हैं, इन चुनौतियों से आगे बढ़ते हुए हम लोग नए संकल्पों के पथ पर आगे बढ़ सके। इस विश्वास के साथ मैं 37वें स्थापना दिवस के अवसर पर एसजीपीजीआई की पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं, विश्वास व्यक्त करता हूं कि निश्चित ही एसजीपीजीआई स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रदेश और देश के अंदर एक नई ऊंचाइयों को छूने का कार्य करेगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार। अब मैं संस्थान के निदेशक प्रोफेसर आर.के. धूमल जी से अनुरोध करूंगी कि वे संस्थान की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी एवं मंच पर आसीन सभी गणमान्य अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट करें। सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी को निदेशक महोदय से अनुरोध है कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। माननीय मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी को स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए निदेशक महोदय जी से मैं अनुरोध करूंगी।
माननीय मंत्री सुरेश खन्ना जी को, राज्य मंत्री माननीय श्री संदीप सिंह जी, निदेशक महोदय से अनुरोध है। मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश श्री राजेंद्र कुमार तिवारी जी, एवं अपर मुख्य सचिव डॉक्टर रजनीश दुबे जी। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा डॉक्टर रजनीश दुबे जी को, अंत में मैं धन्यवाद प्रस्ताव हेतु आमंत्रित करती हूँ संस्थान के संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर S.K. मिश्रा जी को। On behalf of the director and HGPJ family, it gives me immense pleasure to extend word of thanks to our beloved Honorable Chief Minister Sri Yogi Adityanath ji to grace the occasion as the chief guest in spite of his busy schedule. Sri Suresh Khanna ji, Honorable Minister of Finance, Medical Education and Parliamentary Affairs, and Sri Sandeep Singh ji, Honorable Minister of State for Medical Education and Finance, have been constantly guiding us in the development of the institute, for which the institute is ever thankful to them. We are thankful to our President and Chief Secretary, Governor VP Sri Rajesh Kumar Tiwari ji, and Dr. Rajneesh Dwivedi, Additional Chief Secretary, Medical Department of Medical Education, who have been supporting us in executing the mandate given to us. Mr. Balram Halgar, the 37th Foundation Day Orator, who is well known to all of us for his dynamism in combating the coronavirus crisis. The oration topic aptly testifies his statement. We would like to extend him a vote of thanks for making time for us in spite of his busy schedule. Today we have reached another milestone in supporting the state health system through virtual ICU, which would not have been possible with generous grant support from the Power Grid Corporation. So we are thankful to them. It would further strengthen our outreach healthcare system for the state of medical colleges and beyond. The media, both print and electronic, are spreading the good deeds of our institute with the public, so we remain ever grateful to them for their presence. Lastly, I would like to propose a vote of thanks to our director, faculty, residents, research scholars, and staff of the institute, and the entire family of HGPJ for their blessings to make this event a success. Jai Hind. अंत में आप सभी महानुभावों से मेरा अनुरोध है कि राष्ट्रगान